So welcome you all. We are starting place of supply of goods. Place of supply of goods किस सेक्शन में है? सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 में. तो ये पूरा हमने समझा दिया. उसके बेसिस पे ये प्लेस ऑफ सप्लाई का हमने एमसीक्यू बनाया हुआ है. करते हैं अब मैं फिर से बता दूं, ये एमसीक्यू के ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने करीब 3 घंटे लगाए इन सारे एमसीक्यू बनाने में. 19 क्वेश्चंस है और उसमें एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के एमसीक्यू बनाया गया है. तो काफी अच्छे एमसीक्यू हैं. क्या करते हैं. सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा, सप्लाई गुड्स टू रिसिपिएंट ऑफ दिल्ली हु इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. तो आप दिमाग में रखते रहिएगा. जिनेश जी ने आंसर भी दे दिया. सप्लायर इश्यूज इनवॉइस इन द नेम ऑफ द रिसिपिएंट. Recipient transport goods in his rickshaw. Examine the following statements. Place of supply is Delhi. True or false? जल्दी बताइए. True. It is interstate supply. कैसे है इंटरस्टेट सप्लाई? कहां से कहां तक? इंटर इंट्रा किस सेक्शन में पता लगेगा ये बता दीजिए. इंटर इंट्रा किस सेक्शन में पता लगेगा? सेक्शन 7 में. और दिस इज हरियाणा टू दिल्ली. और कैसे पता लगता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन 2 डिफरेंट स्टेट्स. तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है. इट कैन ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस एंड इट डज नॉट रिक्वायर ई वे बिल. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. फॉल्स कैसे है? देखिए हमने जानबूझ के यहां पर रिक्शा लिखा हुआ है. Recipient can claim ITC. Recipient can claim ITC. True. All true. Answer is A. Question 2. Supplier is registered in Haryana. Supply goods to recipient of Delhi who is retailer and is unregistered. Supplier issues invoice in the name of the recipient, specifying the address of the recipient. Recipient consume goods in Haryana itself. Examine the following statements. Place of supply is in Haryana. True or false? False. अगर एड्रेस लिखा हुआ तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई even if the goods are consumed in Haryana itself. It is an interstate supply under section 7. याद रखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10 से निकला है, लेकिन इंटर या इंट्रा तो सेक्शन 7 या 8 से ही निकलेगा. तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली. तो दिस इज ट्रू. फॉल्स ट्रू. आंसर विल बी डी. Question 3. Supplier is registered in Haryana. Supply goods to recipient of Delhi who is a consumer. Consumer do not provide its address. Consumer transports the goods from Haryana to Delhi. Examine the following statements. Place of supply is Haryana. True. It is intrastate supply. True. Both true. Address नहीं दिया तो location of supplier is the place of supply. क्वेश्चन 4 में आते हैं. As per section 2 subsection 2, address of delivery means email ID, pin code, address as indicated in tax invoice as address of delivery of the recipient, address of the supplier. C. सिंपल था. Address of delivery of recipient can be any address like place of business or godown or warehouse, place of residence, place of any other person to whom delivery is to be made. All of the above. All of the above. जो एड्रेस देना चाहे. Examine the following statement. It is compulsory to mention address of delivery for supply of goods. False. Compulsory नहीं है. Compulsory कब है? Compulsory कब है? If taxable value of goods exceeds if taxable value of goods is rupees 50,000 or more. कहां लिखा हुआ है रूल?
46, clause E. Address of delivery is always place of supply. True. False, true. D is the answer. Where taxable value of supply of goods or services is 50,000, supplier is required to mention name and address of unregistered recipient and also the address of delivery. True. Address of recipient and address of delivery is always same. False. रिसिपिएंट का एड्रेस अलग हो सकता है और रिसिपिएंट चाहे कि मैं दिल्ली में हूं रिसिपिएंट और मैं चाहता हूं मेरा कस्टमर है मुंबई में, उसको ट्रांसफर कर, दैट इज पॉसिबल. तो ट्रू और फॉल्स, सी आंसर है. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल बाय डिलीवरी चलान. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ईदर ए और बी. सी आंसर आएगा. लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ 10(1)(b ऑफ IGST एक्ट. 10(1)(b किसके बारे में बात करता है? बिल टू, शिप टू. और इसका अलग फॉर्म भी है, डिस्पैच टू, डिस्पैच फ्रॉम. वो सब इसी में आएगा 10(1)(b में. द पर्सन इन हुज डायरेक्शंस the goods are delivered by the supplier is deemed to have received the goods. True. The recipient to whom goods has been delivered by the supplier is the place of supply. True. ये हम लोग कब यूज करते हैं ये लैंग्वेज? ITC के लिए, ये प्लेस ऑफ सप्लाई जानने के लिए. तो बोथ ट्रू, आंसर विल बी ए. क्वेश्चन 10. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ 10(1)(b. ऑल पर्सन आर रजिस्टर्ड इन GST. यूपी का जो बंदा उसका नाम हमने पर्सन यू रख लिया, तो यू मतलब यूपी. Receives an order from one of his customer in MP, that is person M, to supply 100 units of mobile phone. UP directs one of the supplier of Delhi, that is person D, to deliver 100 units of mobile phone in MP, person M. Person D shall issue an invoice in the name of recipient, person U, which is also a place of supply. Place of delivery being MP, it is a case of interstate supply. Person U can claim IGST credit. True or false? True. फिर person U shall also issue an invoice in the name of recipient M, which is also a place of supply. It is case of interstate supply. Person M can claim IGST credit. True. तो बिल टू शिप टू का केस हो गया. Both true. Examine the following statements. 10(1)(c. All persons are registered in GST. Person A of AP takes a machinery on rent for 1 month from person R of Rajasthan. Goods are lying in AP. After the expiry of 1 month, person A of AP wishes to purchase the machinery. What shall be the place of supply? Andhra Pradesh. Examine the following statement in the light of section 1D. 1D किसके लिए? असेंबली और इंस्टॉलेशन के लिए है. पर्सन M of Maharashtra imported machinery in CKD condition. CKD का फुल फॉर्म, CKD का फुल फॉर्म कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, यानी कि पूरा पार्ट पुर्जा खोल के इंपोर्ट किया गया. और कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में इंपोर्ट करने का फायदा क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है. टू बी असेंबल्ड एट ए फैक्ट्री ऑफ पर्सन जी ऑफ गुजरात. मशीन इज इंपोर्टेड एट कोची पोर्ट फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू महाराष्ट्र.
what shall be the place of supply? Kochi port, Gujarat, Maharashtra, both B और C. देखिए अगर आप 10(1)D देखेंगे तो जहां असेंबली हो रहा है, कहां असेंबली हो रहा है? गुजरात में, तो इट विल बी बी. और अगर आप सेक्शन 11 अप्लाई करेंगे तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? महाराष्ट्र. प्लेस ऑफ इंपोर्ट नहीं है, प्लेस ऑफ इंपोर्ट तो कोची है. इंपोर्टर, प्लेस ऑफ इंपोर्टर, करेक्ट, तो इट विल बी महाराष्ट्र. तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को हटा देंगे और लिखेंगे 10(1)D एंड सेक्शन 11. या पूरा का पूरा हटा ही देंगे, आप अपने आप सेक्शन निकाल के बताइएगा. क्वेश्चन 12. तब उस केस में जब हम लोग उसको हटाएंगे, तो मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा था तो मेरे दिमाग में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों चाहिए था मुझे, इसीलिए मैंने बोथ बी और सी लिखा था. तो इसका आंसर बोथ बी और सी लिखिएगा, ठीक है. तो मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा. एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सेक्शन 1E. 1E क्या है? चलते हुए ट्रेन में, उड़ते हुए प्लेन में अगर सामान बेचा जाता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? रेलवेज इन वन ऑफ इट्स नॉन एसी ट्रेन्स सेल बिस्किट्स, चिप्स एटसेट्रा टू इट्स पैसेंजर्स. मतलब कुक फूड है, या अगर कुक फूड बेच रहा होता तो वो क्या हो जाता? कुक फूड होता तो वो क्या हो जाता? सर्विस हो जाता. तो इसीलिए हमने जानबूझ के बिस्किट्स और चिप्स लिखा है ताकि हम सप्लाई ऑफ गुड्स में रहें. टू इट्स पैसेंजर्स, द जर्नी ऑफ द स्टेट्स ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड एंड्स एट चेन्नई. द ट्रेन स्टॉप्स एट वेरियस स्टेशंस कवरिंग 5 स्टेट्स. Biscuit, chips and other goods are taken on board at 2 stations, first in Delhi and secondly in Telangana. What shall be the place of supply where goods are sold on board to its passengers? So traveling in non-AC train is exempt supply and therefore no question of place of supply. True or false? देखिए मैंने आप लोगों को फंसा ही दिया आखिरकार. हम जब क्वेश्चन बना रहे थे तो जानबूझ के नॉन एसी ट्रेन लिखा था. देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज ए सर्विस, उसकी अलग कहानी है, और उस नॉन एसी ट्रेन में गुड्स बेचना वो अलग डिफरेंट ट्रांजेक्शन है. 2 ट्रांजेक्शंस हैं. तो मैंने जब ट्रेन की टिकट खरीदी तब तो वो एग्जाम सप्लाई था, लेकिन अगर मैं ट्रेन में बैठे हुए कुछ गुड्स खरीदूंगा वो तो टैक्सेबल सप्लाई होगा. तो इसको ये तो फॉल्स है, इसको छोड़ दिए. तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. तो आंसर है दिल्ली एंड तेलंगाना. Examine the following statement in the light of section 11. Person A of Assam imports machinery from Australia. Machine is imported by sea route and lands at Paradip Port, Odisha. और आप पूरे क्वेश्चन में देखेंगे तो हमने पूरी कोशिश की हर एक स्टेट के नाम में लिख दूं. द मशीन इज ट्रांसपोर्टेड टू इनलैंड कंटेनर डिपो हल्दिया, वेस्ट बंगाल. तो कोई इमेजिनरी नेम नहीं है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ये सब. बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड बाय पर्सन ए एट हल्दिया पोर्ट फॉर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन. व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? बताइए. पारादीप पोर्ट उड़ीसा, हल्दिया पोर्ट चेन्नई. ये दिल्ली एंड तेलंगाना कहां से आ गया? नहीं, हमने तो यहां एक ऑप्शन आसाम लिखना था, वो रह गया. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ इंपोर्टर, और इंपोर्टर कहां का है? आसाम का है. तो दिस विल बी द आंसर. लोकेशन ऑफ इंपोर्टर. Examine the following statements. Person M of Mizoram exports certain goods from India to Singapore. Goods are exported through sea route. The goods are transported in truck in Mizoram to Chennai port. Shipping bill is filed at Chennai port. Goods are shipped for Singapore. What shall be the place of supply?
मिजोरम, तमिलनाडु, सिंगापुर या फिर नन ऑफ द अबव। सिंगापुर। एक्सपोर्ट के केस में जिस जगह एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो प्लेस आउटसाइड इंडिया, दैट इज सिंगापुर। Examine the following statement. Person J of Jammu and Kashmir has an establishment in Canada. It receives an order for supply of spices to Mexico. It asks its establishment in Canada to supply spices to Mexico. Person J receives consideration in foreign exchange in India, which is later on reimburses to Canada. What shall be the place of supply and whether consideration received shall form part of aggregate turnover? क्वेश्चन आपको मैं फिर से समझा देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टैब्लिशमेंट कनाडा में भी है और एक इंडिया में भी है। पर्सन जे का 2 स्टैब्लिशमेंट, जम्मू एंड कश्मीर और कनाडा। इसको मैक्सिको से ऑर्डर मिला कि उसको स्पाइसेस चाहिए, तो कनाडा वाला मैक्सिको सप्लाई कर रहा है, और इसको फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में मिला, फिर लेटर ऑन वो रीइंबर्स कर रहा है। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर विच रिफंड कैन बी क्लेम्ड बाय एक्सपोर्टर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। This case falls in Schedule 3 and is no supply. True. False, true. False, true. D is the answer. अब क्या whether it will form part of aggregate turnover? ये फॉरेन एक्सचेंज जो मिला है, नो, क्योंकि शेड्यूल 3 में आ जाता है। इट इज अ केस ऑफ नो सप्लाई। क्वेश्चन 17. Person H of Himachal Pradesh is an intermediary. It has earned commission for facilitating a transaction between person A, who is located in USA, and person B, who is located in Chile. The goods are transported from Chile to USA. What shall be the place of supply and whether commission earned shall form part of aggregate turnover? Okay. Person H, being an intermediary who earns commission, is taxable in India but exempt as per serial number 12AA. True or false? True. Place of supply is Himachal Pradesh. True. इंटरमीडिएरी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। हम लोग करेंगे आपके साथ जब हम लोग सेक्शन 12 या 13 करेंगे आपके साथ, इसीलिए एग्जाम करने की जरूरत पड़ी ना। आप ये बार बार भूल जाते हैं। एग्जामिशन तभी है क्योंकि वो टैक्सेबल था किसी वक्त। इट इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट इज अ केस ऑफ नो सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज दिस इज देयर इज एन एग्जेम्पशन। तो 3 ट्रू है, 3 ट्रू, 3 ट्रू, ऑल ट्रू एक्सेप्ट 4। दिस इज आंसर। क्यों 12AA यहां आ गया, इसीलिए हमें डिस्कस करना पड़ा इसको, नहीं तो हम सीधे इंटरमीडिएट में करते। इंटरमीडिएट में दोबारा कर लेंगे। पर्सन ए ऑफ असम इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. Machine is imported by sea route and lands at Paradip Port, Odisha on 18th May. The machine is transported to Inland Container Depot, Haldia, West Bengal on 20th May. On 19th May, person A endorses bill of lading to person G of Goa. Bill of entry is filed by person G at Haldia Port for clearance for home consumption. Person A shall pay tax for endorsement of bill of lading as it is a taxable supply. True or false? False. Place of supply is Goa. True or false? True. तो होम कंजम्पशन के क्लियरेंस से पहले अगर एंडोर्समेंट हो जाता तो शेड्यूल 3 सप्लाई है, और शेड्यूल 3 सप्लाई है तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। दैट इज अ केस ऑफ नो सप्लाई। फॉल्स ट्रू कहां जाएगा? डी में। आइए, पर्सन ए ऑफ असम इंपोर्ट्स मशीनरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. Machine is imported by sea route and lands at Paradip Port, Odisha on 18th May. The machine is transported to Inland Container Depot, Haldia, West Bengal on 20th May. Bill of entry for warehousing is filed by person A at Haldia Port on 22nd May.
On 25th May, person A endorses custom warehouse receipt to person G of Goa. This is a case of no supply. True or false? True. This is a case of exempt supply. Automatically false हो जाएगा तो. True and false, C is the answer. तो warehouse receipt, custom bonded warehouse में again no supply का केस है. ठीक है. तो ये कंप्लीट हो गया. और मैं जितने भी YouTube में ये वीडियो जाएगी, Facebook में जाएगी, तो उनको मैं आपको सबको बताना ये चाहता हूं कि हम लोग GST के इन डेप्थ कवरेज वाला कोर्स करवाते हैं जो CA, CS, CMA इंटर और फाइनल लेवल वालों के लिए है. आप हमारी वेबसाइट taxbykk.com जरूर से विजिट कीजिए और वहां देखिए, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा और आपको क्वेश्चंस देख के आपको एहसास हो जाएगा कि ये कोर्स वाकई में बहुत अच्छा है. तो मिलते हैं आप लोग से. बाय बाय. तो आज के लिए इतना ही. चलिए, तो मैं आप लोग सबको एक लिंक भेज दूंगा गूगल मैप में, वहां पर आप अपना रिव्यू कर सकते हैं क्लासेस के. सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. चलिए मिलते हैं.